paper number 1 of Raj. Up till now we have seen up to sum number 42. Now sum number 43, which says a cuboidal water tank is 6 meter long. That means length is given 6 meter. Then breadth is given 5 meter. And 4.5 meter deep. That is H is given 4.5 meter. Next, you are asked how many liters of water can it hold. वाटर का लीटर्स में कैपेसिटी फाइंड करना हो, दैट मीन्स आपको क्या फाइंड करना है? यू नीड टू फाइंड वॉल्यूम. सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू L into B into H. 6 into 5 into 4.5. 30 into 4.5, it will be 135 मीटर क्यूब. ये जो आंसर आया वो है मीटर क्यूब में. Now what is asked? You need to find your answer in liters. So 1 meter cube is equals to 1000 liters. So 135 meter cube will be how much? So it will be 135,000 liters, and that's the end of sum number 43. Okay? Sum number 44. Sum number 44 suggests the following numbers of goals were scored by a team in a series of 10 matches. Okay? Find the mean, median and mode of this course. Mean भी find करना है, median भी find करना है और mode भी find करना है. तो अगर median find करना है तो let me arrange this series in ascending order from the beginning. तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 0, फिर लिखूंगा 1, 2, then 1, 2, 3 and 4 times 3, then 2 times 4, 1 time 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay? Right? Now सबसे पहले mean find करेंगे. So mean is nothing but x bar is equals to sum of all observations upon total number of observations. Okay? Now sum of all observations मतलब ये सब ऐड कर दो. 0 plus 1 plus 2 3 plus 3 6 plus 3 9 plus 3 12 plus 3 15 plus 4 is 19 plus 4 23 plus 5 28 divided by 10. So answer is 28 divided by 10 and that is 2.8. ये आया अपना mean. Okay? Now what you are going to find is median. अब आपको पता है कि number of observations आपके कितने हैं? आपके number of observations है even. So you need to find the formula. Even की formula है n by 2 observation plus n by 2 plus 1 observation whole divided by 2. Okay? अब n है अपना 10. So 10 by 2 observation plus 10 by 2 plus 1 observation whole divided by 2. 10 by 2 मतलब 5th observation plus 6th observation whole divided by 2. What is your 5th observation? 3. What is your 6th observation? 3. So 3 plus 3 divided by 2, it will be 6 divided by 2. Median is 3. Median 3 है. And now what is mode? Number of times, number of observations repeated is considered as your mode. So mode will be answer 3.
So sum number 43 and 44 done. Sum number 45. Sum number 45 में आप लोगों को क्या पूछा है? The distance in kilometers of 40 engineers from their residence to their place of work were found as follows. Okay. Construct a grouped frequency distribution table with size phi for the data given above, taking the first interval as 0 to 5. Phi not included. What main features do you observe from this tabular representation? अब सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था? जब भी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड करना हो तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू फाइंड इज रेंज, ताकि आपको पता चले कि आपका जो मिनिमम क्लास है वो कहां से स्टार्ट करना है और मैक्सिमम उसको कहां पे लेके जाना है. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर यू कैन सी ओवर हियर? मैक्सिमम नंबर आई कैन सी इज 32. सो रेंज फाइंड करने के लिए लिखो सबसे पहले रेंज मैक्स वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. सो व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू? आई गेस 32. इससे ऊपर हो तो कोई लिख देना. और मिनिमम वैल्यू आई कैन सी इज 2. मिनिमम वैल्यू आई कैन सी इज 2, राइट? सो 32 minus 2 and answer is your 30. ये सिर्फ इसलिए फाइंड करना है ताकि हम लोगों को पता चले कि हमारा जो क्लास है वो कहां तक लेके जाना है उसको. तो क्लास अब आप लोग लिख सकते हो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 and 30 to 35. क्लास. फिर हम लोग क्या करते हैं? टैली मार्क्स. एंड देन यू नीड टू राइट फ्रीक्वेंसी, राइट? नाउ 0 to 5 में 5 को इंक्लूड ना करें. वैसे पहली लाइन में अगर आप देखोगे तो यू विल सी ओनली 1. ओके, राइट? सो 1. सेकेंड लाइन में देखोगे नथिंग. थर्ड लाइन में देखोगे 1 मोर. थर्ड में देखोगे, सॉरी फोर्थ लाइन में देखोगे तो यू विल सी अगेन 1. फोर्थ लाइन अगेन 1. सो टोटल देयर आर 4. ओके, अगर ऊपर नीचे हो तो प्लीज बता देना. मेरी आंखें कमजोर हो चुकी है, मोबाइल में से पढ़ा रहा हूं. आपसे मैं डबल एज का हूं इसीलिए नहीं है, राइट? तो फर्स्ट 4 आर एक्यूरेट. पहली लाइन 4. 5 to 10 में अब 10 को इंक्लूड नहीं करना है और 5 को इंक्लूड करना है. तो फर्स्ट लाइन 1, सेकेंड लाइन नथिंग, सेकेंड लाइन नथिंग, थर्ड लाइन 2. तो पहली लाइन में 1, दूसरी लाइन में कुछ नहीं, तीसरी लाइन में 2 दिखे हैं, चौथी लाइन में 1 2 3, पांचवी लाइन में 1 और 2, और आखिरी लाइन में 1 2 और 3, 1 2 3. सो टोटल कितने हुए? 5 5 10 and 1 11. नेक्स्ट इज 10 to 15, जिसमें 10 को इंक्लूड करना है और 15 को इंक्लूड नहीं करना है. तो फर्स्ट लाइन 1 2 3. सो फर्स्ट लाइन में है 1 2 and 3. सेकेंड लाइन में है 1 2 3 अगेन 1 2 3 सेकेंड लाइन में. फिर थर्ड लाइन में देखो 1 ओनली 1. देन फोर्थ लाइन में देखो 1. फिफ्थ लाइन में देखो 1 2 1 and 2. और आखिरी वाली लाइन में ओनली 1.
So 5 plus 5, 10 and 2. So this is 12. नेक्स्ट 15 टू 20 में 15 इंक्लूड करेंगे और 20 को नहीं करना है. ओके तो पहली लाइन में देखोगे 1 नथिंग. सेकेंड लाइन में 1 2 एंड 3. ओके देन थर्ड लाइन में अगेन 1 2 1 एंड 2. फोर्थ लाइन में 1 एंड 2. नेक्स्ट लाइन में 1 और आखिरी लाइन में भी 1. ओके तो 5 एंड 4 इट इज 9. एंड 20 टू 25 में 20 को इंक्लूड करेंगे और 25 को नहीं करेंगे. तो फर्स्ट लाइन 1, second line nothing, third line nothing, fourth line nothing, fifth line nothing and sixth line be nothing. So 1. Okay then next 25 to 30 में 25 इंक्लूड करेंगे और 30 को इंक्लूड नहीं करेंगे. So 25 वाला एक और फिर पूरे लाइन में नहीं है. राइट सो 0 1 एंड 30 टू 31 में भी एक है. नाउ कैलकुलेट करो. अगर ये सही होगा तो टोटल आंसर आएगा आपका 40. अगर गलत है तो ये कैलकुलेशन गलत. ठीक है 4 प्लस 11 इट इज 15. 15 प्लस 12. ओके 15 प्लस 12 इज 27. Okay 27 plus 9 is 27 plus 9 is 36. 37 38 39. तो कुछ तो गलत हुआ अपना. ठीक है तो अब क्या गलत है किसी ने कुछ चैट में लिखा है 0 to 5 में there will be 5 and not 4. तो okay let us change this and here it is 40. Okay now ऐसा आपको पूछा है what main features do you observe from this observation या representation. तो क्या देखा आप लोगों ने कि more than 50%. ठीक है 12 plus 11 कितना हुआ आपका 23 and 5 28. more than 50% people come from the area of 0 to 15 किलोमीटर. ऐसा लिखना पड़ेगा कि more than 50% of people are coming from the range 0 to 15 किलोमीटर. राइट तो ये है सम नंबर 45. Now we have completed your section C. Okay जो 3 मार्क्स वाला जो सेक्शन है वो खत्म कर दिया है. Now section D उसमें लिखा है answer the following any 5 questions by showing method in every sums. Question number 46 to 53 मतलब 46 47 48 49 50 51 52 53 8 में से 5 करने हैं. ओके 8 में से 5 करने हैं लेकिन ये अपना रेगुलर सेशन है तो हम लोग सारे सम्स करेंगे. फर्स्ट 46 सम में लिखा है प्रूव दैट एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल. दैट इज योर थ्योरम 7.2. ओके ये 7.2 है. तो गिवन में मैं क्या लिखूंगा गिवन में मैं ऐसा लिखूंगा ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ठीक है आइसोसेलेस triangle in which AB is equals to AC. Now what you need to prove is angle B is equals to angle C.
Now draw diagram A, B, C, and then draw a bisector AD which will bisect angle A. Okay? Then proof में सबसे पहले construct AD such that it will bisect angle A. ठीक है? Then we have proof. Sorry. Then for correspondence आपको दो ट्राइंगल दिखेंगे छोटे छोटे ए बी डी वर्सेस ए सी डी. सबसे पहले क्या लिखेंगे? ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन. देन कैन आई राइट ए डी कॉमन. ठीक है? ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन. एंड लास्ट कैन आई राइट एंगल बी ए डी is equals to angle CAD bisector. तो अब ध्यान से देखोगे तो एंगल है, सॉरी साइड है, एंगल है, साइड है. तो ये कौन सा क्राइटेरिया हुआ? बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ABD is congruent to angle triangle ACD. And therefore by CPCT can I write angle B is equals to angle C, and that's the end of sum number 46. Moving ahead, sum number 47. अगर आप लोग देखोगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा कि कहना क्या चाहता है. पहले क्वेश्चन समझो. Define congruence of a triangle and explain any two of them. मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्राइंगल हम लोग किस किस तरीके से प्रूव करते हैं, बराबर है, और सबको एक्सप्लेन करना है. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्राइंगल की डेफिनेशन समझाऊंगा. कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्राइंगल दैट मींस two triangles are congruent when any of the two sides and the angle is equal to one another, या तो फिर any three sides are equal to another three sides of a triangle. ठीक है? तो congruence का मतलब क्या होता है? two triangles having similar sides and angles, then we can say that both triangles are congruent. बराबर है? Now ऐसी कितने congruency है? तो can I write SAS is a congruency. ठीक है? Then can I write ASA? Then can I write AAS? Then can I write SSS? Then can I write also RHS? Now इनमें से आप लोगों को किसी भी दो की डेफिनेशन लिखनी है. Either you can write SAS, ASA, AAS, SSS, RHS. अब सबको साइड एंगल साइड पता होगा. Two triangles are congruent if two sides and included angle of one triangle is equal to the another triangle having two sides and included angle. Then two triangles are said to be congruent by SAS. Same way you can write about ASA. Same way you can write about angle side. Same way you can write about SSS, that is side, and same way you can write about RHS, that is right angle, hypotenuse, and any of the side. Okay, so you people write this down, and you can write definition of all of this instead of writing two. Okay, chalo start.
Sum number 48. The angles of quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13. Find all the angles of quadrilateral. This is way too simple for 4 mark sums. फिर भी let angle A is equals to 3x, angle B is equals to 5x, angle C is equals to 7x या 9x दिया है, sorry, and angle D is equals to 13x. Now all the angle sum property of quadrilateral क्या आएगा? All the total angle A plus angle B plus angle C plus angle D कितना होगा? 360 डिग्री. 3x plus 5x plus 9x plus 13x is equals to 360. Then total हो गया ये 30x, क्योंकि 3 plus 5 8, 8 and 9 17, 17 and 13 it is 30x is equals to 360. तो x is equals to 360 divide by 30. So x की वैल्यू आई 12. So एंगल A होगा आपका 3 into 12 36. एंगल B होगा 5 into 12 which will be 60. एंगल C होगा 9 into 12 which is 108. एंड एंगल D होगा आपका 13 into 12 which is 156 degree. Sum number 48 over. Moving ahead, sum number 47, sorry not 47, it is 49. ये ट्राइंगल का सम है, ठीक है. In figure, angle PQR is equals to 100, where P, Q and R are the points on the circle with center O. Find angle OPR. डायग्राम आपको साइड पे दिखेगा और ये रहा, आपको यहाँ पे भी अच्छे से दिखा दूं. दिस इज पॉइंट O, यहाँ पे कहीं पे है P, फिर यहाँ से कुछ ऐसे ही जा रहा है R है, फिर इसको ऐसे कुछ ज्वाइन कर दिया है और यहाँ पे कहीं पे है आपका Q पॉइंट और PQR जो है वो दे दिया है 100. ठीक है. Now you are asked to find this angle. So what are we going to do is, first of all, take point S over here, join it with P and R. बन गया. ठीक है. तो अब ध्यान से देखोगे डायग्राम, तो आपका डायग्राम दिखेगा PQRS is a cyclic quadrilateral. बराबर है. PQRS आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया. नाउ एज यू नो, opposite angles of quadrilateral are supplementary. बराबर है. यहाँ पे लिखने का भी वो थियरम है 10.12 कि opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. तो एंगल Q अपना 100 है, तो एंगल S जो है वो कितना आएगा? एंगल S will be 180 minus 100 and that is equals to 80 डिग्री. मतलब ये हो गया 80 डिग्री. अब ध्यान से देखोगे आप लोग, ठीक है, तो थियरम 10.8 की याद आएगी. 10.8 suggests that angle POR is equals to angle PSR 2 times. बराबर है. This angle is 2 times this angle. बराबर. राइट और रॉन्ग? यस. और यहाँ पे साइड पे लिखने का थियरम 10.8 एंगल सबटेंडेड at the center is twice the angle subtended at any of the arc of a circle. So angle POR is equals to 2 into PSR कितना आया? 80 डिग्री. So 2 into 80 is 160 डिग्री. तो ये जो आया एंगल वो है 160 डिग्री. अब छोटा ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल OPR ये दिख रहा है.
ठीक है, OPR, जिसमें OP is equals to OR because they are radius of a circle. Okay, radius of a circle. Then according to theorem 7.2, can I write angle ORP is equals to angle OPR? And now according to theorem 6.7, बराबर, can I write angle OPR plus angle ORP plus angle POR is equals to 180 degree. एंगल सम प्रॉपर्टी अपने को फाइंड करना है OPR, ORP की जगह मैं वापस OPR लिख सकता हूं, ठीक है, तो OPR प्लस OPR और POR की वैल्यू है अपने पास विच इज 160 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो OPR प्लस OPR हो गया 2 टाइम्स OPR, ये प्लस वहां पे जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 180 माइनस 160, तो 2 टाइम्स OPR इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। सो सिंगल टाइम OPR क्या होगा, 20 डिवाइड बाई 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 10 degree. End of sum number 49. Sum number 50. Sum number 50. Construct angle 90 degree and justify the construction. और 51 भी मैं साथ में ही समझा दूंगा, construct angle 60 and justify the construction. तो सबसे पहले 90 डिग्री बनाएंगे एंड देन 51 में 60 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले ऐसे एक रे ड्रॉ करें, देन सबके पास कंपास तो होगा ही, वो कंपास को नीडल पॉइंट को ये वाले O और R ऐसा नाम दे दो, और फिर यहां से हाफ सेमी सर्कल ड्रॉ कीजिए। फिर कंपास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कंपास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही रखेंगे, और नीडल पॉइंट को यहां पे लेके आएंगे, और ये पॉइंट जो है उसको नाम दे दो S, और S से जो पहला आर्क निकलेगा वो पॉइंट दे दो आप लोग उसको नाम दे दो T। अभी भी कंपास डिस्टर्ब नहीं करना है। फिर S या T से वापस एक पॉइंट कंपास डिस्टर्ब किए बिना, वो आएगा आपका Q पॉइंट। अभी भी कंपास डिस्टर्ब नहीं करना है। Q और T के बीच में जो भी रहता है, एक बार Q से आर्क लगाओ, एक बार T से आर्क लगाओ, एंड फिर ये O से ज्वाइन करोगे तो जो एंगल बनेगा POR इज योर 90 डिग्री, बराबर है, राइट, बराबर। एंड सेम 51 में आप लोगों को अगेन ड्रॉ अ रे OR, O से जैसे बताया सेमी सर्कल, राइट, देन कंपास को डिस्टर्ब नहीं करना है, और T पे से पहला जो पॉइंट आएगा वो है अपना S, और ये पॉइंट अगर इसको एक्सटेंड करोगे तो POR इज द रिक्वायर्ड एंगल विच इज 60 डिग्री। नाउ ड्रॉ बोथ and write the steps of construction. Fast. Sum number 52. A soft drink is available in 2 packs. A tin with rectangular base length 5 centimeter. दो उसमें है, तो पहला पार्ट length is 5 centimeter, width of 4 सेंटीमीटर मतलब ब्रेथ, एंड हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर। ये है एक। और दूसरा क्या दिया है, प्लास्टिक सिलिंडर विथ अ सर्कुलर बेस, डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर।
Which container has greater capacity and by how much? Greater capacity, capacity means आपको यहाँ पे फाइंड करना है वॉल्यूम. ओके, सो वॉल्यूम फाइंड करेंगे दोनों का. वॉल्यूम ऑफ ये हो गया आपका क्यूबॉइड which is L, B and H. 5 4 za 20, 15 za 300 centimeter cube, and over here it is volume of cylinder pi r square h. ओके, ये है फॉर्मूला. 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस क्या होगा इसका? Can I write it by this way? 7/2 centimeter. So it will be 7/2 into 7/2 into height is 10. 2 1 za 2 11 za 7 7 cancel. मैं यहाँ पे ये भी कर लेता हूँ. 2 1 za 2 5 za. ओके, अब देखो 11 7 za 77 मल्टीप्लाई बाय 5. सिंपल है. 7 5 za 35, 7 5 za 35 and 3 38 सेंटीमीटर क्यूब. किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, क्यूबॉइड की कि सिलेंडर की? ऑब्वियसली सिलेंडर की. कितनी ज्यादा है? सो सिलेंडर्स कैपेसिटी इज मोर and by how much? तो 385 minus 300 कितना होगा? It is and by 85 centimeter cube. So this is your sum number 52. Last sum of your Vraj paper number first, sum number 53. It is written, the height of 50 students measured to the nearest centimeters have been found to be as follows. Now you are given, represent the data given above by a grouped frequency distribution taking the class interval as 160 to 165, 165 to 170 and so on. तो अब आप लोगों को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जैसे पहले सब में भी बताया, व्हाट यू नीड टू फाइंड इज रेंज. तो मैक्स वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू बच्चों यहाँ पे? आई गेस इट इज 173, राइट? इज इट 173? And what is the minimum value? I guess it is 150. Right or wrong? 150. So आपकी रेंज हो गई 23. क्लास, टेलीमार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी. क्लास कहां से स्टार्ट करेंगे? आपको दे ही दिया है 150 to 155, 155 160, 160 to 165, 165 to 170, 170 to 175. और फिर आपको ऐसा भी पूछा है, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट्स फ्रॉम द टेबल. ठीक है, ओके. नाउ धीरे धीरे चालू करो. 150 टू 155, जिसमें 155 को इंक्लूड नहीं करना है. ओके, सो फर्स्ट लाइन में देखोगे आप लोग तो 151 मतलब 1 2 3 है. फिर सेकंड लाइन में 1 2 2. देन थर्ड लाइन में देखोगे तो 1 2. फोर्थ लाइन में देखोगे तो नथिंग. फिफ्थ लाइन में 1 2 3. फिर नेक्स्ट लाइन में देखोगे तो नथिंग. और लास्ट लाइन में देखोगे तो 2.
बराबर है, राइट और रॉन्ग? प्लीज जरा चेक कर लेना एक बार. So 10 and 2 12. Now 155 to 160 जिसमें 160 को इंक्लूड नहीं करेंगे. ठीक है. सो पहली लाइन में कुछ नहीं है, सेकंड लाइन में भी कुछ नहीं है. हाँ है 158 मतलब 1. फिर थर्ड लाइन में 1 2. फोर्थ लाइन में नथिंग. फिफ्थ लाइन में 1 2 1 और 2. सेकंड लास्ट लाइन में 1 और फिर 2 है, 1 और 2. So 5 and 3 it is 8. 160 to 165. अब 160 को इंक्लूड करेंगे एंड 165 को इंक्लूड नहीं करेंगे. ठीक है. सो नाउ पहली बात, पहली लाइन 1 2. पहली लाइन में 2. थर्ड लाइन सॉरी सेकंड लाइन में 1 2. सेकंड लाइन में भी 2 है. थर्ड लाइन में 1 ही है, 1 ही है. फोर्थ लाइन 1 2 3 1 2 2 है. देन नेक्स्ट में 1 2. फिर लास्ट सेकंड लाइन में 1 2 3 4. 1 2 3 4. और लास्ट लाइन में 1. सो 10 and 4 14. चलो नेक्स्ट 165 टू 170 में 165 इंक्लूड करेंगे एंड 170 को इंक्लूड नहीं करेंगे. सो 1 2. फर्स्ट लाइन में आई गेस 2 है. सेकंड लाइन में 1 है. थर्ड लाइन में 1 भी नहीं. फोर्थ लाइन में 1 2 3. 1 2 3 फोर्थ लाइन में. फिर फिफ्थ लाइन में है 1 1. फिर सिक्स्थ लाइन में देखो 1. और आखिरी लाइन में देखोगे तो 1 2 2. तो 5 and 5 10. Okay. Next and last 170 to 175 में 175 को इंक्लूड नहीं करेंगे. पहली लाइन में देखोगे तो यू विल नॉट फाइंड एनीवन. सेकंड लाइन में 1. सेकंड लाइन में 1 है. थर्ड लाइन में यू विल सी 1 2 1 and 2. फोर्थ लाइन में यू विल फाइंड 1. फिफ्थ लाइन में नथिंग. सिक्स्थ लाइन में भी 1 है. एंड दैट्स इट. तो 5. So 12 and 8 20. 20 and another 10 30. 30 and 14. It is 44 and 49. ये तो गलत हो गया, 60 होने चाहिए. 165 to 170 में 11. 11. So अब बराबर हो गया 50. 12 and 8 20. 20 and this is 25. तो हो गया 45 and 50. Done. Now what you are asked is, what can you conclude about their heights from the table? From the table, we can conclude that more than 50%, okay, more than 50% students have height 155 to 165 centimeter.
मीटर. सो लिख देने का मोर देन 50% of students have less than, ऐसा भी लिख सकते हो, less than 165 सेंटीमीटर हाइट. बराबर है. एंड दैट्स द एंड ऑफ योर पेपर नंबर 1 फ्रॉम व्रज. ओके बच्चों.